بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس، امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نائنتھ کلاس ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ایکسرسائز 4.1 اس کو کمپلیٹلی جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیا ہے۔ اس کے اندر کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 3 اور کوشچن نمبر 4 یہ جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے کوارڈریٹک ایکویشن کو فیکٹرائز کرنا، یعنی دو درجی مساوات کی تجزیہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ والے کوشچن اگر آپ لوگوں کو آتے ہوں گے تو آپ کا یہ والا چیپٹر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس 4.1 ایکسرسائز کو کمپلیٹلی جو ہے نا وہ اسی چینل کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو کروایا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے ان کو جو ہے نا وہ لازمی جو ہے نا وہ دیکھنا ہے، پھر ہی آپ لوگوں کا یہ چیپٹر اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہوگا۔ تو آج کے لیکچر کے اندر ہم ایکسرسائز 4.2 جو ہے نا اس کا کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 جو ہے نا یہ سولو کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن نمبر 1 ہے فیکٹرائز۔ اب بچوں ہمارے پاس نا یہ کوشچن نمبر 1 اس کے نا ٹوٹل 6 پارٹ ہیں، ان کو آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے کیونکہ ان کے اندر نا تھوڑی بہت ٹیکنیکس یوز ہوں گی جن کو ہم نے یوز کر کے ان کو مکمل سولو کرنا ہے۔ اب اس کے اندر نا 3 فارمولے یوز ہونے ہیں، اے کا اسکوئر جمع 2ab جمع b کا اسکوئر برابر ہے a جمع b اس کا ہول اسکوئر، یعنی اگر پہلی ویلیو کا اسکوئر اور دوسری ویلیو کا اسکوئر درمیان میں دو فارمولے کا پہلی طرف دوسری آ جائے تو پہلی اور دوسری کو جمع کر کے اس کا ہول اسکوئر لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور a کا اسکوئر مائنس 2ab جمع b کا اسکوئر از اکول ٹو a مائنس b اس کا ہول اسکوئر، یعنی اگر a کا اسکوئر آ جائے اور b کا اسکوئر آ جائے درمیان میں مائنس 2ab بن جائے تو اس میں a مائنس فارمولے والا b اور اس کا ہول اسکوئر بن جائے گا۔ اب ان کوشچنز کے اندر نا کوشچن نمبر 1 کے جو 6 کے 6 پارٹ ہیں ان میں پہلے ان دونوں میں سے جناب ایک فارمولا بنے گا، بعد میں ان میں سے جناب وہ تیسرا فارمولا a کا اسکوئر مائنس b کا اسکوئر بنے گا، بعد میں اس کو ایک دفعہ پلس میں اور ایک دفعہ مائنس میں لکھ دیں گے ہم، ٹھیک ہے بچوں۔ تو کوشچن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1 ہے 4x کی 4 جمع 81 اور y کی 4 ہے بچوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا وہ 4x اسکوئر لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 4 ہے سوری، ٹھیک ہے، 81 y کی 4، ٹھیک ہے بچوں۔ اگر ہم اس 4 کو لکھیں 2x کا اسکوئر اس کا ہول اسکوئر، 81 کو ہم لکھ سکتے ہیں 9y کا اسکوئر اور اس کا ہول اسکوئر، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اگر ہم دو فارمولے کا لگائیں، پہلی رقم جو ہے نا وہ 2x اسکوئر آئے، ٹھیک ہے، اور دوسری رقم جو ہے نا وہ 9y اسکوئر آئے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 2 to the 4 اور 4 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 36، ٹھیک ہے، 9 4 36 آ جائے گا x اسکوئر اور y اسکوئر، یعنی کہ یہ فارمولا تب کمپلیٹ ہوگا جب ہمارے پاس یہ 36x اسکوئر اور y اسکوئر ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ دو فارمولے کا پہلی اور دوسری a کا اسکوئر اور b کا اسکوئر تو بن رہا ہے اس کے اندر، کیونکہ دیکھیں نا یہاں پر ہمارے پاس جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہے a کا اسکوئر اور b کا اسکوئر تو بن رہا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں پتا چلے گا پلس والا فارمولا بنے گا یا مائنس والا فارمولا بنے گا۔ اب دیکھیں دو فارمولے کا پہلی ضرب دوسری بنی تو ہمارے پاس 36x کا اسکوئر اور y کا اسکوئر آیا۔ اب کیا کریں گے، اس 36x کا اسکوئر اور y کا اسکوئر اس میں ایڈ بھی کریں گے اور سبٹریکٹ بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے نا وہ لکھیں گے ایکول کا سائن لگا کے 4x کی 4 پلس 81 y کی 4، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اس کو جو ہے نا وہ لکھیں گے ایڈ اینڈ سبٹریکٹ، ایڈ اینڈ سبٹریکٹ 36x اسکوئر اور y اسکوئر، یعنی 36x اسکوئر y اسکوئر کو جمع اور تفریق کرنے سے، اردو میڈیم والے بچے یہ لکھیں گے۔ اچھا یہ بچوں اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے 4x کی 4 جمع 81 y کی 4 جمع 36x اسکوئر اور y اسکوئر مائنس 36x اسکوئر اور y اسکوئر۔ اب دیکھیں جو لاسٹ والی مائنس والی ویلیو ہوگی نا یہ ہمارے پاس جو دوسرا فارمولا بنے گا اس کے اندر استعمال ہوگی۔ اب یہ پہلی تین جو ہے ان کا فارمولا بنے گا، کس طرح سے بنے گا فارمولا بنا لیتے ہیں۔ فارمولا یہ ہے 2x اسکوئر اس کا ہول اسکوئر، جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا ہول اسکوئر، یہ ہمارے پاس ہے 9y اسکوئر اس کا ہول اسکوئر جمع 36 ہے 2 فارمولے کا پہلی جو ہے نا وہ 2x اسکوئر ہے اور
दूसरी जो है ना वो 9y स्क्वायर है जो कि ये लिखी हुई है, स्क्वायर स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे। अब ये 36 है ना, 36 को हम अलहदा से लिख देंगे 6xy इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने ऐसे लिखते जाना। अब देखिए बच्चों ये वाला जो है ना हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, जो आप यहाँ पर देखें a का स्क्वायर जमा 2ab, यहाँ पर ये जो 2ab ना ये अगर लास्ट में भी आ जाए तो फिर भी यही सेम फॉर्मूला बनेगा। b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, दो फॉर्मूले का पहली तरफ दूसरी। देखिए इसके अंदर a का स्क्वायर b का स्क्वायर जमा दो फॉर्मूले का पहली तरफ दूसरी। ठीक है, सेम फॉर्मूला बन रहा है। तो मतलब ये है कि हम इसके अंदर फॉर्मूला क्लोज करेंगे 2x का स्क्वायर, दरमियान में जमा लगाएंगे जो साइन 2 के साथ लिखा होगा, और दूसरी वैल्यू 9y स्क्वायर इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस ये आ जाएगा 6xy इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बस ये आप लोगों ने ध्यान से करना है। अब देखें, अब ये वाला फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर बराबर है a जमा b और a माइनस b। ठीक है, देख सकते हैं ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। इस फॉर्मूले को अब हम जो है ना वो ओपन करके लिख देंगे, यानी कि हम लिखेंगे एक दफ़ा इसको प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ये वाली अलामत चेंज करनी, स्क्वायर ख़त्म करके जो होल स्क्वायर लिखे हुए इनको ख़त्म करना, अंदर वाले स्क्वायर ख़त्म नहीं करने, जमा 6xy, उसके बाद 2x का स्क्वायर जमा 9y का स्क्वायर, इधर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, मीन्स के एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका बुक के अंदर जो आंसर लिखा हुआ है ना, उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है कि जो 6xy है ना उसको दरमियान के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 2x स्क्वायर जमा 6xy जमा 9y का स्क्वायर, उसके बाद ये वाला 2x का स्क्वायर माइनस 6xy जमा 9y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ना वो बच्चों इसका पार्ट नंबर 1 उसका फाइनल जो है ना वो आंसर है। बस आप लोगों ने इसके अंदर ख्याल ये रखना है कि हमारे पास दो रकमें दी होंगी, उन दोनों को हम जो है ना वो होल स्क्वायर बना के दो फॉर्मूले का अपनी तरफ से लगा के पहली तरफ दूसरी करके जो भी हमारे पास आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे, यानी जमा भी करेंगे और तफरीक भी करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ a की 4 जमा 64 b की 4। अब इसको हम जो है ना वो एक दफा लिख लेते हैं, इक्वल का साइन लगा के a की 4 64 b की 4, इसको हम सेपरेट जो है ना यहाँ पे लिखते हैं a की 4 64 और b की 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर a4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, 64 को हम लिख सकते हैं 8, क्योंकि जो है ना ये हमारे पास 8 8 64 होता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, b का स्क्वायर। नहीं जी बच्चों, अब देखिए दो फॉर्मूले का लगाएंगे हम अपनी तरफ से, तो ये आ जाएगा पहली a स्क्वायर है और दूसरी जो है ना वो 8b का स्क्वायर है। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो ये a 2 16 हो जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास ना 16 a स्क्वायर और b स्क्वायर इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो हम 16 a स्क्वायर b स्क्वायर जिस तरह से हमने इसके अंदर जो है ना वो 36 x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, इसी तरह इसके अंदर जो है ना वो 16 a स्क्वायर b स्क्वायर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 16 a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी कि उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे 16 a स्क्वायर b स्क्वायर जमा और तफरीक करने से। नेक्स्ट a की 4 जमा 64 b की 4, इसको ऐड करेंगे यानी जमा करेंगे 16 a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 16 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है, जो लास्ट माइनस वाली वैल्यू होगी ना वो नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर यूज हो जाएगी। अब इसका ना फॉर्मूला बन जाएगा तीनों का। अब कौन सा फॉर्मूला बनेगा, देखिए प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर। पहले मैंने बताया कि 2ab अगर लास्ट में भी चला जाए फॉर्मूला यही क्लोज होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर जमा 64 को हमने यहां पे भी लिखा था 8b का स्क्वायर उसका स्क्वायर, यानी देखिए 4 है ना 2 2 आ जाएगा,
जमा 2 फॉर्मूले का, पहली ए स्क्वायर है और दूसरी जो ना वो 8b का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब लास्ट वाला जो 16 है ना, 16 को हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 16, तो हमने इसको होल स्क्वायर में लिखना है। 16ab ये हमारे पास आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, 4ab आ गया। अब ये वाला बच्चों हमारे पास बन गया फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला बना है? ये प्लस वाला फॉर्मूला बना है, क्योंकि तीनों रकमें जो है ना वो प्लस में, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab इज इक्वल टू ए जमा बी इसका होल स्क्वायर। तो हम इसको जो है ना यहाँ पर अभी क्लोज करेंगे। पहली है ए स्क्वायर और दरमियान में साइन जो 2 के साथ लिखा होगा, दूसरी है 8b का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस 4ab इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास ना ये फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए जमा बी ए माइनस बी। तो इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे हम, उसके बाद हमारे पास जो है ना लास्ट इसका आंसर आ जाएगा। लें जी, इसमें लिखेंगे ए स्क्वायर जमा 8b स्क्वायर, ये अलामत चेंज करनी, स्क्वायर खत्म कर देंगे, सिर्फ होल स्क्वायर खत्म करेंगे हम, माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा 4ab। उसके बाद नेक्स्ट है ए स्क्वायर जमा 8b स्क्वायर, ये माइनस, ठीक है, एक दफा प्लस में लिख दिया हमने 4ab, ठीक है बच्चों। जिस तरह से हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ना 6xy जो ना दरमियान में लिखा है, इसी तरह इसके अंदर भी हम 4ab को जो ना दरमियान में लिखेंगे। तो ये हम लिखेंगे ए स्क्वायर जमा 4ab। आंसर ये भी आपका बिल्कुल ओके है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक अगर हमने आंसर लिखना हो तो वो हम इस तरह से तरतीब जो ना वो लिख देंगे 8b स्क्वायर, उसके बाद है ए स्क्वायर माइनस 4ab जमा 8b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो पार्ट नंबर 2 का आंसर है। रहमान रहीम, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को हम लिख लेते हैं इक्वल का साइन लगा के, x की 4 जमा 4x स्क्वायर जमा 16। अभी जो हमने पहले 2 पार्ट किए उनके अंदर ना 2-2 रकमें थी, लेकिन यहाँ पर है 3 रकमें। अब इन तीनों रकमें से हमने जो है ना वो 2 रकमों को देखना है कि जिनसे जो है ना फॉर्मूला बन रहा है, यानी जिनको जो है ना वो ए और बी हम लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना सकते हैं। अब देखिए अगर हम x की 4 को देखें तो x की 4 को हम जो है ना वो इस तरह से x की 4 लिखते हैं, x की 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जो 16 है तो हम 16 को लिख सकते हैं, लेकिन 16 को हम जो है ना वो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास a बन जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा b। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 फॉर्मूले का, पहली है x स्क्वायर और दूसरी है 4, ठीक है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 4x स्क्वायर इसको भी तो लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको लेंगे ना तो हमारे पास जो है ना वो फॉर्मूले के अंदर ये जो 16 है ना ये नहीं आएगा, ठीक है। ये 4x स्क्वायर हमें जो है ना ये इसमें से बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये a या b की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको जो है ना वो पहली को और आखिरी वैल्यू को लिया है। तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 2 8x का स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 रकमें पहले दी 8x स्क्वायर, x स्क्वायर तो हमारे पास है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 4, तो हम इस 4 को जो है ना वो तोड़ेंगे, यहाँ पर हम 8 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 8? देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें 8x का 4 सॉरी x की 4 जमा 8x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, यानी हमने सिर्फ और सिर्फ यहां पर यह किया है इस 4x को ना हमने 2 में डिवाइड कर दिया है ताकि हमारे पास फॉर्मूले की शक्ल बन जाए। अब जिसके साथ माइनस है ना, यानी 8x में से जो है ना वो 4x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 4x स्क्वायर ही आएगा। माइनस वाली वैल्यू को लास्ट पे शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा x की 4 जमा 8x का स्क्वायर जमा 16 और ये लास्ट वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये तीनों रकमों का जो ना वो फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम जो है ना वो सबसे पहले अरेंज करते हैं, यानी इसकी तरतीब बनाते हैं। पहले x की 4 है तो x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया जमा 2 फॉर्मूले का। अब देखिए यहाँ पर 2 फॉर्मूले का पहली और दूसरी के लिए जगह छोड़ दें और ये हमारे पास
16 इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर पहली कौन सी बनी एक्स स्क्वायर और दूसरी कौन सी बनी है 4, ठीक है। और ये वाला जो है इसको लास्ट पे ऐसे ही हमने लिख देना है स्क्वायर बना के होल स्क्वायर। तो ये 4 को लिख सकते हैं 2 और x के ऊपर स्क्वायर है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये फॉर्मूला देखें a का स्क्वायर 2ab जमा b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम जो है इस तरह से क्लोज कर देंगे a जमा b इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम क्लोज करने जा रहे हैं x का स्क्वायर जमा दरमियान से प्लस 4 इसका होल स्क्वायर माइनस 2x इसका होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास आ गया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर है a जमा b और a माइनस b। तो हम इसको एक दफा लिखेंगे प्लस में और एक दफा इसको लिखेंगे माइनस में। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर जमा 4, ये हम लिखेंगे प्लस 2x और स्क्वायर खत्म करके यह आ जाएगा x स्क्वायर जमा 4 माइनस 2x, ठीक है बच्चों। अगर हमें इसका बुक के अकॉर्डिंग आंसर निकालना हो तो ये 2x को सेंटर में ले है, यह आ जाएगा x स्क्वायर। ये आंसर भी बिल्कुल ओके है। तो आप इसको जो है ना बुक के अकॉर्डिंग अगर आंसर निकालना चाहते हैं तो वो ये आ जाएगा हमारे पास। जस्ट हमने 2x इधर लिख दिया 4 इधर लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 2x जमा 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो है ना ये पार्ट नंबर 3 है उसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर भी 3 वैल्यूज हैं, x की 4 माइनस 14 x का स्क्वायर और जमा 1। अब देखिए इसमें होल स्क्वायर किसका बन रहा है, x की 4 का बन रहा है और 1 का। अब देखिए 1 का कैसे बन रहा है, 1 के ऊपर हम अपनी तरफ से स्क्वायर और क्यूब लगा सकते हैं फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए। 14 को हम जो है ना वो स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिख सकते, लिहाजा ये a और ये b रकम बनाएंगे हम। यहाँ पर x की 4 और ये 1 लिखते हैं हम। अब देखिए x की 4 है ना तो इसको हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये जो 1 है इसके ऊपर हम अपनी तरफ से स्क्वायर लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब 2 फॉर्मूले का लगाएंगे जो कि हमने फॉर्मूला जो है ना वो ये वाले फॉर्मूले अभी हमने सीखे हैं। a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर ये हमने प्रीवियस 3 पार्ट के अंदर बनाया है। तो इसके अंदर जो है ना ये बनेगा, ये हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा यानी पहली रकम और दूसरी रकम है 1। अब 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 1 2 आ जाएगा और आ जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए 2x स्क्वायर फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ माइनस 14x का स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखें कि ये हम लिख दें 2x स्क्वायर और साथ में माइनस 16x का स्क्वायर लिख दें तो ये हमारे पास माइनस 14x स्क्वायर ही आ जाएगा। यानी कि हम इस माइनस 14x स्क्वायर को इस तरह से तोड़ के लिख देंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। तो हम इसको लिखते हैं x4 जमा 2x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब जो माइनस वाली वैल्यू है इसको हम कर देंगे लास्ट पे शिफ्ट, x की 4 जमा 2x का स्क्वायर और जमा 1 माइनस 16x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये वाला बनेगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बनेगा प्लस y a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, अगर तीनों रकमें प्लस में है ना तो वो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, अगर दरमियान में कोई माइनस में आ जाए या लास्ट वाली माइनस में आ जाए तो फिर हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। लेकिन बच्चों इसके अंदर हम फॉर्मूले की शक्ल बनाते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 2 फॉर्मूले का, पहली के लिए जगह छोड़ दें दूसरी के लिए जगह छोड़ दें, जमा 1 का स्क्वायर अपनी तरफ से, उसके बाद 16 है तो 16 को हम क्या लिखेंगे होल स्क्वायर में 4x उसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास 4x का स्क्वायर आ गया। अब देखें ये x स्क्वायर ये है पहली रकम और दूसरी रकम है 1, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास फॉर्मूला बना है ये 3 रकमों का, ये वाली तीनों, ठीक है। ये बना है a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर, a जमा b इसका होल स्क्वायर, ये क्लोज हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर, दरमियान से जमा लेंगे हम 2 के साथ जो अलामत है प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, उसके बाद है माइनस, यह आ जाएगा 4x इसका
होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बना है, देखें ए का स्क्वायर माइनस है बी का स्क्वायर, यानी ए जमा बी, ए माइनस बी, डबल स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे हम। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 1, स्क्वायर खत्म कर देंगे, होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वाले स्क्वायर नहीं खत्म करेंगे। यह आ जाएगा जमा 4x, उसके बाद एक्स स्क्वायर जमा 1, ये वाली पहली वैल्यू, उसके बाद माइनस 4x। अब ये वाला आंसर भी बिल्कुल ओके है, लेकिन अगर हम इसका जो ना आंसर बुक के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं तो वो ये आएगा, इसमें हम लास्ट वाली वैल्यू 4x है ना, इसको दरमियान में ले आएंगे, दरमियान में लेके आएंगे, अलामत चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला 1 लास्ट पे चला जाएगा, 4x दरमियान में आ जाएगा, x से माइनस 4x और प्लस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो है ना वो फाइनल इसका आंसर है, जो कि हमने पार्ट नंबर 5 के अंदर भी 3 वैल्यूज हैं, इनको हम जो है ना वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर जमा 9y की 4। अब देखिए जो 30 है ना, इसको हम होल स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी ये a और b नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, x की 4 और 9y की 4, इसको हम साइड पे लिख के सबसे पहले इसकी तीसरी वैल्यू फॉर्मूले की निकालते हैं, 9y की 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 9 है। अब ये 9y की 4 है ना, तो 9y की 4 को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब 2 फॉर्मूले का लगाते हैं हम, 2 फॉर्मूले का लगाया, पहली बनेगी एक्स स्क्वायर और दूसरी बनेगी 3y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखें अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 3 टू द 6, तो यह आ जाएगा 6x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब दरमियान में जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 30x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसको ना तोड़ेंगे ताकि फॉर्मूला हमारे पास जो है ना वो बन जाए, क्योंकि फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए 6x स्क्वायर और y स्क्वायर चाहिए हमें। तो इसको हम जो है ना वो कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से, x की 4 अगर हम यहाँ पे लिखें 6x स्क्वायर और y स्क्वायर, इसको हम 36x स्क्वायर y स्क्वायर से माइनस कर दें तो हमारे पास ये 30 भी आ जाएगा, 36 में से 6 निकाल दें तो 30 भी आ जाएगा, और ये हमारे पास फॉर्मूले के लिए तीसरी वैल्यू भी बन जाएगी 9y की 4। अब जो माइनस वाली वैल्यू उसको लास्ट पे शिफ्ट कर देंगे हम, x की 4 जमा 6x स्क्वायर और y स्क्वायर जमा 9y की 4, जो माइनस वाली वैल्यू उसको हम लास्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये वाला हमारे पास फॉर्मूला बना है प्लस वाला, क्योंकि तीनों रकमें प्लस में, तो इसमें फॉर्मूले की शक्ल बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जमा 2 फॉर्मूले का, पहली के लिए जगह छोड़ दें, उसके बाद दूसरी के लिए जगह छोड़ दें, जमा 3y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये जो 36 है, 36 को हम जो है ना वो होल स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, 6x y इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये पहली रकम कौन सी बनी थी, एक्स स्क्वायर, और दूसरी रकम कौन सी बनी है, 3y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखें ये वाली जो 3 रकमें ना, इनका तो बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा बना है, ये वाला फॉर्मूला, a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम क्लोज करेंगे, x का स्क्वायर जमा 3y का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और माइनस 6xy इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अब ये फॉर्मूला बन गया, तो इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 3y का स्क्वायर प्लस 6xy, अब एक दफा प्लस में लिख दिया, और अब इसको लिखेंगे माइनस में, एक्स स्क्वायर जमा 3y का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर खत्म कर देंगे बच्चों, लिखेंगे माइनस 6x और y, ठीक है। ये आंसर भी इसका बिल्कुल ठीक है,
لیکن اگر ہم اس کا آنسر نکالنا چاہتے ہیں بک کے اکارڈنگ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, اس کو لکھیں گے یہ 6xy درمیان میں لے آئیں گے جمع 6xy جمع 3y کا اسکیئر لاسٹ پہ شفٹ کر دیا. اس کے بعد اس کی باری ایکس اسکیئر مائنس 6xy جمع 3y کا اسکیئر. اب یہ لاسٹ ہمارے پاس فائنل اس کا بچوں آنسر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹ نمبر 6 ہے بچوں. پارٹ نمبر 6 کے اندر بچوں یہاں پر نا کچھ بکس کے اندر یہاں پر مسٹیک ہے درمیان میں. یہاں پر کچھ بکس میں لکھا ہوا جمع 11x اسکیئر اور y اسکیئر, لیکن اس کا یہ والا کریکٹ ہے, اس کے اکارڈنگ یہ ہوگا, نہیں تو یہ جو ہے نا رانگ ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. یعنی اس کو ہم لکھ لیتے ہیں x کی 4 مائنس 7x اسکیئر y اسکیئر جمع y کی 4. اب دیکھیں اس کا ہول اسکیئر بن سکتا ہے, اس کا ہول اسکیئر بن سکتا ہے, اس کا ہول اسکیئر نہیں بن سکتا کیونکہ 7 ہول اسکیئر بنتا ہی نہیں کسی کا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے x کی 4 اور y کی 4. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x اسکیئر کا اسکیئر, اور یہ جو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں y اسکیئر کا اسکیئر. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس جو ہے نا دو فارمولے کا لگائیں گے. اب پہلی جو ہے نا وہ رقم بنے گی x اسکیئر اور دوسری بنے گی y کا اسکیئر. ٹھیک ہے بچوں. اب ہمارے پاس یہاں پر آگے کوئی نمبر ہی نہیں تو ہم اس کو لکھیں گے 2x اسکیئر اور y اسکیئر. یعنی کہ ہمارے پاس یہ والی جو ویلیو ہے نا یہ فارمولے کے اندر نہیں ہے, تو اس کو ہم فارمولے کے اندر بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ اس 7x اسکیئر y اسکیئر کو توڑیں گے, یعنی کہ فارمولا بنانے کے لیے. کیسے توڑیں گے اس کو؟ x کی 4 2x اسکیئر y اسکیئر اور یہاں پہ لکھیں مائنس 9x اسکیئر اور y اسکیئر جمع y کی 4. دیکھیں اگر ہم 9 میں سے 2 نکال دیں گے 7 آ جائے گا. بس فارمولا کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. مائنس والی ویلیو کو لاسٹ پہ شفٹ کر دیں گے ہم, تو یہ x کی 4 جمع 2x کا اسکیئر y کا اسکیئر, اور یہ والی ویلیو ادھر آ جائے گی اور مائنس والی ویلیو جو ہے نا وہ لاسٹ پہ شفٹ ہو جائے گی 9x کا اسکیئر اور y کا اسکیئر. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کا ہم فارمولا بنائیں گے. کون سا فارمولا؟ پلس والا فارمولا جو کہ ہم پریویس پارٹس کے اندر بناتے آ رہے ہیں. a کا اسکیئر جمع 2ab جمع b کا اسکیئر از اکول ٹو a جمع b کا ہول اسکیئر. تو اس کو فارمولے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. x اسکیئر کا اسکیئر جمع 2 فارمولے کا پہلی اور دوسری جمع y کی 4 ہے نا, تو اس کو ہم لکھیں گے y اسکیئر کا اسکیئر. اب پہلی رقم آئی ہے x اسکیئر, دوسری آئی ہے y اسکیئر. ٹھیک ہے بچوں. اب یہ جو 9x اسکیئر اس کا کیا کریں گے؟ اس کو ہم لاسٹ پہ ہول اسکیئر بنا کے لکھ دیں گے. 9 کو 3 لکھتے ہیں, 3xy اس کا ہول اسکیئر آ جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. اب دیکھیں اب ہمارے پاس یہ جو فارمولا بنا ہے نا یہ والا, یہ 3 پہلی ویلیوز, یہ بنا ہے پلس والا فارمولا. کس طرح سے؟ x اسکیئر جمع y اسکیئر اس کا ہول اسکیئر. ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگ ہم نے فارمولا جو ہے نا وہ بنایا ہے a کا اسکیئر جمع 2ab جمع b کا اسکیئر برابر a جمع b اس کا ہول اسکیئر. اس کے بعد مائنس 3xy اس کا ہول اسکیئر. ٹھیک ہے بچوں. اب دیکھیں اب ہمارے پاس یہ بنا ہے a کا اسکیئر مائنس b کا اسکیئر برابر a جمع b اور a مائنس b, یعنی ڈبل اسکیئر درمیان میں مائنس ایک دفعہ پلس میں اور ایک دفعہ مائنس میں. تو اس کو ہم لکھتے ہیں x اسکیئر جمع y اسکیئر, یہ مائنس ہے تو یہاں پر آ جائے گا پلس, یعنی ایک دفعہ پلس میں لکھ دیں گے اس کو ہم. اب اس کے بعد x اسکیئر جمع y اسکیئر درمیان میں مائنس, کیونکہ ہم اس کو لکھیں گے مائنس میں. ٹھیک ہے. یہ ایک دفعہ پلس میں لکھ دیا, ایک دفعہ مائنس میں لکھ دیا. اب اگر ہم اس کا آنسر نکالنا چاہتے ہیں بک کے اکارڈنگ تو یہ 3xy کو ہم جو ہے نا درمیان میں لے آئیں گے اس طرح سے. یہ آنسر بھی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جمع 3xy آ جائے گا جمع y کا اسکیئر, اس کے بعد x اسکیئر مائنس 3xy جمع y کا اسکیئر. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ ہمارے پاس فائنل جو ہے نا وہ پارٹ نمبر 6 جو کہ لاسٹ پارٹ تھا کوسچن نمبر 1 کا, اس کے ہم نے تمام کے تمام پارٹس کو کمپلیٹلی سالو کر لیا ہے. اگر ان سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوسچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, آپ لوگوں کو اس کا جو ہے نا وہ آنسر مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوسچن نمبر 2 فیکٹرائز. اب دیکھیں بچوں کوسچن نمبر 2 کے اندر نا
ये पहले जो दो पार्ट हैं और लास्ट वाले दो पार्ट, इनके अंदर हमने ना चार चार लीनियर फैक्टर कौन से होते हैं, यकदर्ज जुमले। ये x की पावर 1, इसमें x की पावर 1, इसमें x की पावर 1, इसमें x की पावर 1, चार लीनियर जो है ना वो फैक्टर्स दिए हुए हैं, चार यकदर्जी जुमले दिए हुए हैं। इनको हमने जो है ना वो सॉल्व करके आंसर निकालना यानी फैक्टराइज करना, हमने इनकी तज्जीह करनी है। अब इनकी तज्जीह किस तरीके से करेंगे, इनके अंदर हम क्या करेंगे, हम ना दो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करने का भी एक जना वो तरीका है। किस तरह से, अगर हम उनकी मुस्तकिल वैल्यू को, यानी ये जो मुस्तकिलात हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, उन दो दो को हम अगर जमा करें तो उनका आंसर सेम आए। जैसे कि अगर हम देखें 1 और 2 है तो ये 1 और 2 जो है ना वो कितना होता है, 3 होता है, और 3 और 4 ये 7 होता है। मतलब इसका 3 आ रहा है और इसका क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अब देखें अगर हम इस तरह से करें, 3 और 2 करें, 3 और 2 को जो है ना अगर करें, देखें जमा 2 और जमा 3, तो ये कितना आता है, जमा का 5 आता है। और अगर हम इसको लिखें जमा 1 और जमा 4, तो इसका क्या आएगा, इसका भी जमा 5 आएगा। मतलब ये कि ये x जमा 1 x जमा 4 से मल्टीप्लाई करें और x जमा 2 x जमा 3 से मल्टीप्लाई करें। ये काम हम क्यों कर रहे हैं ये आपको मैं आगे जाकर बताता हूं। तो इसको सबसे पहले हम जो ना वो लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 प्लस 1, इक्वल का साइन लगा के लिख लिया। अब किन को हमने करना है, x प्लस 1 को x प्लस 4 के साथ, तो इसको इस तरह से ना वो लिखते हैं आप x प्लस 1 उसके बाद x प्लस 4। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब ये वाला x प्लस 2 उसके बाद x प्लस 3, ये वाला जो प्लस 1 है ये ऐसे साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनको हमने ना मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, जो पहला नंबर है या पहली वैल्यू है पहली ब्रैकेट की, उसको आगे वाली दोनों के साथ, पहले x के साथ बाद में 4 के साथ, फिर बाद में 1 को x के साथ, उसके बाद 1 को 4 के साथ, इसी तरह हमने इसके अंदर करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास x मल्टीप्लाई विद x, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 2 हो गई। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस 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 4x आ जाएगा। नेक्स्ट ये x हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 1 की बारी है, जमा और इसके साथ भी जमा है, जमा 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 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x1 से x ही आ जाएगा। नेक्स्ट जमा जमा जमा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 1 जा 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसकी बारी, पहले x को x के साथ, बाद में 3 के साथ, फिर 2 को x के साथ और बाद में 2 को 3 के साथ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 3x आ जाएगा। यहाँ पर अलामत जमा की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी जमा है, यहाँ पर भी जमा, जमा 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 होता है। ठीक है, अलामतों को हमने देखना था, जो अलामतें उनके साथ लिखी हुई हैं उन्हीं अलामतों को भी ज़रब करके साथ लिख देते हैं। अब ये x हो गया, आगे जमा जमा जमा, यानी इसके साथ जमा इसके साथ जमा है, तो ये आ जाएगा 2x, जमा जमा जमा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और ये आ गया जमा 1। ठीक है बच्चों, अब x स्क्वायर जमा ये 4x और ये x, ये दोनों सेम है, इनको हम ऐड कर देंगे, 5x आ जाएगा, जमा 4 आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट x की स्क्वायर, 3x और 2x दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6 और प्लस 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, ये दोनों रकमें जो है ना वो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम आई हैं। इस वजह से हमने जो है ना इनको इस तरीके के साथ मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि अगर हम इनको डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई करते तो इनके अंदर ना हमारे पास 4 आ जाना था, यानी x की 2 और x की 2, ये हमारे पास x की पावर 4 आ जानी थी। तो हमने अभी तक x की पावर 4 वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं सीखा, तो लिहाजा हम इसको जो है ना वो दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने ये वाला सारे का सारा प्रोसीजर किया है। अब इसके अंदर हम दो वैल्यूज सेम आई हैं, इनको हम कर लेंगे लेट, क्या करने के लिए, दो दर्जी मसावात बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, फर्ज किया ये पहली दो रकमें x स्क्वायर जमा 5x ये इक्वल है y के।
ٹھیک ہے بچوں. اب اس کو ہم اکویشن نمبر 1 کا نام دیں گے, اکویشن نمبر 1. اب یہاں پہ لکھیں گے فرام اکویشن 1. اب اکویشن نمبر 1 کے اندر جہاں پر لکھا ہوا نا ایکس اسکوائر پلس 5x, وہاں پر آپ نے لکھنا y. تو ہم لکھتے ہیں اس کو, یہ ایکس اسکوائر پلس 5x, اس کی جگہ آپ لکھیں گے y پلس 4. نیکسٹ ایکس اسکوائر پلس 5x, اس کی جگہ آپ لکھیں گے y جمع 6, اور یہ والا پلس 1 ایسے ساتھ آ جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. اب دیکھیں جس طرح سے یہاں پر جو ہے نا یہ دو بریکٹس آپس میں ملٹیپلائی ہے نا, یہاں پر ایکس ایکس تھا, تو یہاں پر بھی اب جو ہے نا یہ دونوں بریکٹس کو ملٹیپلائی کریں گے, اس کے بعد ہمارے پاس کوارٹرک ایکویشن بن جائے گی. y کو y سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا y کا اسکوائر, y کو 6 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا 6 اور y. ٹھیک ہے بچوں. اب 4 کو ملٹیپلائی کریں گے y کے ساتھ تو یہ آ جائے گا 4y. 4 کو ملٹیپلائی کریں گے 6 کے ساتھ, 6 4 24 آ جائے گا, اور یہ پلس 1 ویسے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے جو ہم نے اوپر کوشچن میں لکھا تھا. اب دیکھیں 6y اور 4y دونوں کو ایڈ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 6 اور 4 آ جائے گا 10y. ٹھیک ہے بچوں. اب 24 اور یہ 1 کتنا ہو جائے گا 25. اب یہ بچوں ہمارے پاس بن گئی ہے کوارٹرک ایکویشن. اس کی سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم ax اسکوائر پلس bx اور پلس c, یہ اس کی ترتیب چیک کریں گے. یہ y ویریبل میں ہے تو یہ y اسکوائر y اور مستقل ویلیو یعنی ترتیب اوکے ہے. اب لاسٹ والی ویلیو اور پہلی ویلیو کو ہم کیا کریں گے ملٹیپلائی. ٹھیک ہے, لیں جی 1 ملٹیپلائی وتھ 25, تو یہ ہمارے پاس 1 ملٹیپلائی وتھ 25 تو یہ آ جائے گا از اکول ٹو 25. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ درمیان والی ویلیو کو دو ٹکڑے کرنے ہیں کہ ان کو جمع یا مائنس کریں تو 10y آئے, اور اگر ضرب کریں تو 25 آئے. تو یہ تو بالکل سمپل ہے, اگر ہم 5 کو 5 میں ایڈ کریں تو 10 آ جائے گا, 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو پلس 25 آ جائے گا. تو اس کو ہم ادھر لکھ لیں گے. اس سے ریلیٹڈ میں نے 4.1 کمپلیٹ جو ہے نا وہ بنائی ہے, تو 4.1 کو آپ لوگ لازمی واچ کریں کیونکہ 4.1 کے اندر میں نے یہ سارا طریقہ کا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کیا ہوا ہے. y اسکوائر پلس 5y پلس 5y پلس 25. ٹھیک ہے بچوں. 5 اور 5 10, 5 اور 5 25 ملٹیپلائی کرنے سے. اب دو کو جو ہے نا وہ بریکٹ میں کلوز کر دیں, دو میں سے کامن لیں گے, y اسکوائر پلس 5y اس طرح سے کلوز کر دیا, پلس 5y پلس 25. دونوں بریکٹس کے اندر علامتیں سیم ہونی چاہیے. اگر علامتیں سیم نہیں ہوں گی تو آپ جو ہے نا وہ دوسری بریکٹ کے لیے جو ہے نا وہ علامت سیم کرنے کے لیے مائنس کو کامن لیں گے. لیں جی بچوں. اب پہلی بریکٹ میں سے کامن آ رہا ہے y, تو اس کو لکھیں گے y جمع 5 جو اندر بچ جائے گا, جمع اس میں سے آ رہا ہے 5 کامن, یہ آ جائے گا y پلس, تو 5 5 25. ٹھیک ہے بچوں. اب یہ y پلس 5 جو ہے نا یہ ہے 2 مرتبہ, اس کو ہم لکھیں گے 1 مرتبہ. ٹھیک ہے, یہ لکھ دیا ہم نے y پلس 5 اور y پلس 5 آ گیا. اب یہ 2 دفعہ اس کا بھی 1 ہے, اس کا بھی 1 ہے, تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں y پلس 5 اس کا ہول اسکوائر. ٹھیک ہے بچوں. اب دیکھیں بچوں, اگر آپ کو آپ کے جو ہے نا وہ گھر والوں نے بھیجا ہوا ہے دال لینے کے لیے دکان پہ, تو آپ لوگ جو ہے نا وہ لے کے آ جائیں چاول, تب آپ کو گھر والے کیا کریں گے, گھر والے کہیں گے چلو جی واپس جاؤ دال لے کے آؤ. تو یعنی ہم نے دیکھیں جو کوشچن تھا نا یہ ہمیں تھا ایکس کی شکل میں, تو ہمارا جو جواب ہے وہ کس کی شکل میں آ گیا, یعنی وہ ہمارا جواب وائی کی شکل میں آ گیا, یعنی دال تھی تو چاول آ گئے. تو اب کیا کریں گے, اب ہم جو ہے نا وہ واپس دکان پہ جائیں گے. دکان کہاں پر ہے, یہ دکان بنی ہوئی ہے, یعنی ایکس اسکوائر جمع 5x از اکول ٹو وائی. تو یہ جو y ہے نا یہ اس کے برابر ہے, یعنی یہ اس دال کے برابر ہے ایکس اسکوائر پلس 5x. تو اس y کی جگہ پر ہم جو ہے نا وہ کیا لکھیں گے, جو ہم نے لیٹ کیا تھا ایکس اسکوائر جمع 5x اور پلس 5 یہ والا, اس کا آ جائے گا ہول اسکوائر. تو یہ ہمارے پاس بچوں فائنل جو ہے نا وہ اس کا آنسر ہے. کوشچن جو ہے نا وہ مشکل نہیں تھا, کوشچن بالکل آسان تھا, بس آپ لوگوں نے یہ جو ترتیب ہے جس کے ساتھ آپ لوگوں نے ان کو ملٹیپلائی کرنا وہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ملٹیپلائی کرتے جائیں, ہمارے پاس کوارٹرک ایکویشن بن جائے گی, اس کو فیکٹرائز کریں, لاسٹ پہ جا کے جو y کی ویلیو اس کو ریپلیس کر دیں, ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹ نمبر 2 ہے اس کا. پارٹ نمبر 2 کو ہم لکھ لیتے ہیں x پلس 2
x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 और प्लस 17। अब इसके अंदर भी वही तरीका करेंगे, हम दो दो ब्रैकेट्स के ना कांस्टेंट नंबर्स को जमा करके देखेंगे, अगर वो सेम आ रहे हैं तो फिर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे आपको आगे जाकर बता देता हूं। अब देखिए जमा 2 है और अगर हम इसमें ये लिखें माइनस 7 तो ये हमारे पास आ जाएगा, 7 में से 2 निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों। अब ये माइनस 4 और माइनस 1 है तो ये भी हमारे पास माइनस 5 आ जाएगा। ये तो पहले ही हमारे पास तरतीब से दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली 2 को और आखिरी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करें। x प्लस 2, x माइनस 7, नेक्स्ट x माइनस 4, उसके बाद x माइनस 1, देन 17 जो है ना ये ऐसे साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है बच्चों। अभी हमने प्रीवियस जो किया है उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम। किस तरह से देखें, x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, बाद में इसको माइनस 7 के साथ, उसके बाद 2 को x के साथ और 2 को 7 के साथ। ठीक है, ले जी बच्चों, हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्केयर आएगा। जब x को मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस 7 से तो x के साथ यहाँ पर है प्लस, तो वो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई विद x तो ये आ जाएगा 7x। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर जो है ना ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, बाद में 7 के साथ, 2 मल्टीप्लाई विद x तो ये आ जाएगा 2x, प्लस माइनस माइनस, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 2 ज़ा 14। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इस जो है ना वो पेयर की बारी है। x मल्टीप्लाई विद x, x मल्टीप्लाई विद माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई विद x, 4 मल्टीप्लाई विद माइनस 1। ठीक है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्केयर आएगा, उसके बाद x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो ये माइनस x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई विद x, x आ जाएगा, और इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसकी 4 की बारी, माइनस 4x, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़ा 4 जमा 17, ये ऐसे साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट x स्केयर। अब ये दोनों रकमें ना सेम है, अगर हम 7 में से 2 को निकाल दें, यानी जमा माइनस माइनस होता है, अलामत आती है बड़ी वैल्यू की, 7 बड़ी वैल्यू तो 7 की अलामत आ गई, 7 में से 2 निकालें तो ये आ जाएगा 5x माइनस 14, ये आ गया। ठीक है, x स्केयर। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है और अलामत आएगी माइनस की, बड़ी वैल्यू की, 4 और इसके साथ 1 है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x जमा 4 जमा 17। ठीक है बच्चों। अब देखें यहाँ पर जो है ये एक्स स्केयर माइनस 5x, एक्स स्केयर माइनस 5x, जैसे लास्ट वाला पार्ट था उसके अंदर भी पहली 2 वैल्यू सेम आई थी तो उनको भी हमने लेट कर लिया था, इनको भी लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्केयर माइनस 5x इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां जहां पर लिखा हुआ ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x, वहां पर हम लिखेंगे y, तो यहाँ पर लिखेंगे y इसके अंदर माइनस 14, उसके बाद y जमा 4 और जमा 17, ये ऐसे ही आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों। अब देखें, अब ये हमारे पास 2 जो है ना वो ब्रैकेट्स आ गई हैं, ये लीनियर ब्रैकेट्स है। यहाँ पर अगर हम इनको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके करते तो ये हमारे पास बननी थी x की पावर 4 वाली इक्वेशन। x की पावर 4 वाली इक्वेशन को अभी तक हमने सॉल्व करना नहीं सीखा। ठीक है, हम जस्ट 2 दर्जी मसावात को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y का स्क्वायर आ जाएगा, y को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये आ जाएगा 4y, माइनस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, माइनस 14y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे ये आ जाएगा 56, और ये 17 जो है ना वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है y स्क्वायर जमा माइनस माइनस, 14 में से 4 निकाल देंगे क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो 14 में से 4 निकाल देंगे 10y आ जाएगा। अब इन दोनों को देखें, माइनस प्लस माइनस, अलामत माइनस की, बड़ी वैल्यू की, 56 में से हम 17 को माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 39। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम जो है ना इसकी करेंगे तर्जीह, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है,
اس کی سب سے پہلے ترتیب اگر چیک کی جائے تو یہ وائی اسکیئر پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد وائی, اور اس کے بعد مشکل ویلیو, ترتیب بالکل صحیح ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, پہلی اور آخری ویلیو کو ملٹیپلائی کریں گے. اگر ہم +1 کو ملٹیپلائی کریں -39 کے ساتھ تو یہ -39 آ جائے گا, پلس مائنس مائنس. ٹھیک ہے, اب ہم نے درمیان والی ویلیو جو نا 10 کے ہم نے ٹکڑے کرنے ہیں 2, کہ اگر ان کو جمع یا مائنس کریں تو 10 ہی آئے, اور اگر ان کو ضرب کریں تو -39 آئے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے, 39 کو نا فیکٹرائز کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم, یہ ایون اوڈ نمبر ہے, 3 1 3 اور 3 3 9, اور یہ 13 1 13. 13 میں سے اگر ہم 3 کو جو ہے نا وہ مائنس کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا, یہ ہمارے پاس آ جائے گا 10 بھی آ جائے گا. اور 13 کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں اس طریقے سے ہم کریں گے, جو علامت ہمیں درمیان میں چاہیے ہوگی وہ بڑی ویلیو کے ساتھ لگائیں گے. مائنس پلس بھی مائنس ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا -10 آ جائے گا, اور اگر ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ آ جائے گا -39. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ والے دو جو ہے نا ہمارے پاس اس کے ٹکڑے آ گئے, ان کو ہم یہاں پہ لکھیں گے وائی اسکیئر -13y, اس کے بعد +3y -39. ٹھیک ہے بچوں, اب ان میں سے دو کا جو ہے نا بریکٹ بھی کلوز کریں گے تو یہ آ جائے گا وائی اسکیئر -13y کلوز کر دیا, جمع 3y -39. دونوں بریکٹس کے اندر علامتیں ایک جیسی ہونی چاہیے, اس میں ایک جیسی ہیں. اب نیکسٹ ہم لیں گے دونوں بریکٹ میں سے کامن, تو اس میں سے کامن آ رہا ہے y. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آ جائے گا y -13. نیکسٹ جمع, اس میں سے آ رہا ہے 3 کامن, y -3 1 3 اور 3 3 9. ٹھیک ہے بچوں, اب y -13 جو ہے نا یہ ہے 2 دفعہ, تو اس کو ہم لکھیں گے ایک دفعہ y -13, یہ y جمع 3. ٹھیک ہے بچوں, اب یہ آ گیا دال چاول والا کھیل, یعنی دال لینے پہ جیسا چاول آ گئے تو ہم کیا کریں گے, یہاں پر دوبارہ جائیں گے دکان کے پاس, x² -5x, یہ ہمارے پاس ہے دال, تو یہ ہم y کے ایکول جو ہے نا یہاں پر لکھ دیں گے x², یعنی جو ہم نے y لیٹ کیا تھا, تو x² -5x -13 اور x² -5x اور جمع 3. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ ہمارے پاس لاسٹ فائنل اس کا جو ہے نا وہ آنسر ہے. مان رحیم پارٹ نمبر 3 بالکل آسان ہے. پارٹ نمبر 3 اور پارٹ نمبر 4 دونوں بالکل آسان ہے. ان کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ پہلے اس نے تھوڑا سا فیکٹرائز کر کے دیا ہوا ہے. اب دیکھیں 2x² + 7x, اس میں پہلی دو رقمیں پہلے ہی جو ہے نا وہ سیم ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ پارٹ کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ پہلے ان کو سیم بنانے کے لیے پہلی دو رقموں کو ہم نے ملٹیپلائی وغیرہ کیا تھا, لیکن اس کے اندر اس نے تھوڑا سا ہمیں فیکٹرائز کر کے دیا ہوا پہلے. تو اس کو ہم لکھتے ہیں پہلے ایکول کا سائن لگا کے 2x² جمع 7x + 3, 2x کا اسکوئر پلس 7x + 5 اور +1 آ جائے گا. ٹھیک ہے بچوں, اب دیکھیں, اب یہ ہمارے پاس ہم اس کو کر لیتے ہیں لیٹ, یہ 2x² + 7x = y, یعنی کہ یہ دو رقمیں سیم ہیں, ان کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں y کے برابر. ان کو ہم ایسے اگر ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ایکویشن بنے گی نا وہ x کی 4 والی بنے گی, یعنی یہ بائی کوآڈریٹک ایکویشن 4 درجی ایکویشن. اس کو ابھی تک ہم نے سالو کرنا نہیں سیکھا, تو ہم جو ہے نا وہ 2 درجی مساوات کے ذریعے اس کو سالو کریں گے. تو اس کو پہلے 2 درجی مساوات بنائیں گے, تو ہم یہاں پہ لکھیں گے, اس کو ایکویشن نمبر 1 کا نام دے دیں, تو ہم یہاں پہ لکھیں گے فرام ایکویشن 1, یعنی ایکویشن نمبر 1 میں آپ نے جہاں پر یہ 2x² + 7x لکھا وہاں پر آپ نے لکھنا ہے y. تو لیں جی ہم لکھتے ہیں, یہ آ جائے گا, اس میں آ جائے گا y +3 آ جائے گا, اور اس میں آ جائے گا y +5 اور یہ +1 ایسے آ جائے گا. ٹھیک ہے بچوں, اب یہ دو لینئر فیکٹرز ہیں, ان کو ملٹیپلائی کریں, ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, y کو y سے ملٹیپلائی کریں گے y کا اسکوئر آ جائے گا, y کو ملٹیپلائی کریں گے 5 سے تو یہ 5y آ جائے گا, 3 کو ملٹیپلائی کریں گے y سے تو یہ 3y آ جائے گا, اس کے بعد پلس 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 آ جائے گا, 5 3 15 آ جائے گا, اور یہ پلس آ گیا. ٹھیک ہے, +1 آ گیا, سوری. اب y² + 5 اور 3 یہ ہو جائے گا 8, اور 15 اور 1 یہ ہو جائے گا 16. اب یہ بچوں ہمارے پاس بن گئے 2 درجی مساوات کوآڈریٹک ایکویشن. اس کی ترتیب y² y اور مشکل ویلیو ترتیب اس کی بالکل اوکے ہے.
अब हम इसको करेंगे फैक्टराइज, यानी दरमियान वाली वैल्यू को दो टुकड़े करेंगे, उनको जमा या माइनस करें तो 8y आए, और अगर उनको ज़रब करें तो ये हमारे पास जो ज़रब करके आता है यानी 16 आता है, तो 16 जो है ना वो आना चाहिए प्लस 16। ठीक है बच्चों, यानी पहली और आखिरी को 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आना चाहिए, तो ये 16 आना चाहिए इन दोनों को ज़रब करके। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, अगर हम 4y प्लस 4y लिखें और प्लस 16, 4 को 4 से जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16 आ जाएगा, और 4 को 4 में ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दो को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे हम, वाई स्केयर प्लस 4y लें जी बच्चों, ये क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पर दरमियान में लगाएंगे प्लस 4y प्लस 16। ठीक है, देन कॉमन लेंगे हम, इसमें से कॉमन आ रहा है y प्लस 4 आ गया, नेक्स्ट बच गया जमा, इसमें से जो है ना वो 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आ जाएगा y प्लस 4 4 ज़ा 16। ठीक है बच्चों, अब y प्लस 4 ये है 2 दफ़ा, इसको लिखेंगे 1 दफ़ा, ये आ गया y प्लस 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट y प्लस 4 ये हम इकट्ठा करके लिख देंगे, ले जी। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये है 2 दफ़ा, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से बना देंगे y प्लस 4 इसका होल स्केयर। अब हमारे पास ये y है ना, हमारा जो सवाल था ना वो था x की शक्ल के अंदर, तो हमारा जवाब आ रहा वो तो y का आ रहा है, तो हमने जो लेट किया था ना y 2x स्केयर प्लस 7x, वो हम वहां पर जो है ना वो जवाब के अंदर लिखेंगे, यानी यहाँ पर हम जो है ना इसको मजीद लिखेंगे, ये आ जाएगा 2x स्केयर प्लस 7x और प्लस 4 इसका होल स्केयर। तो ये हमारे पास लास्ट बच्चों फाइनली इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल आसान है, इसके अंदर भी हमें जो है ना वो पहली दो वैल्यूज सेम है, तो इसके अंदर भी हम लेट कर लेते हैं, लेट 3x का स्केयर प्लस 5x इज इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इसको। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर जहां पर 3x स्केयर प्लस 5x लिखा ना वहां पर आप लिखेंगे y, लिखते हैं हम इसको 3x स्केयर प्लस 5x, इसकी जगह पर लिखेंगे y प्लस 3, देन इसके अंदर y प्लस 5 माइनस 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y मल्टीप्लाई विद y होगा पहले, उसके बाद होगा ये 5 के साथ जमा 5 और y, जमा 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 आ जाएगा 3y आ जाएगा बच्चों, उसके बाद जमा 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 5 3 ज़ा 15 और ये आ जाएगा माइनस 3। ठीक है बच्चों, देन हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा y का स्केयर, 5 और 3 जो है ये हो जाएगा 8। ठीक है, देन प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू की अलामत आएगी, ये 15 में से 3 निकाल दे तो हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये वाली हमारे पास जो मसावत है इसको हम करेंगे फैक्टराइज। अब ये बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन है ना y स्केयर प्लस 8y प्लस 12, इसको हम जो है ना वो फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन को y स्केयर प्लस 8y प्लस 12। इसको फैक्टराइज किस तरीके से करना है कि ये दरमियान वाली वैल्यू ने इसको हमने तोड़ना है कि अगर दो टुकड़े करने, अगर उनको जमा या माइनस करें तो 8y आए, और अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है ना वो प्लस 12 आए। किस तरह से, ये हमारे पास डिटेल के साथ मैंने जो है ना वो एक्सरसाइज 4.1 के अंदर आपको इसको फैक्टराइज करना सिखाया है, इस वजह से जो है ना यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। प्लस y स्केयर, अगर हम 8 को ये लिख दें 6y प्लस 2y प्लस 12। ठीक है बच्चों, देखिए 6 और 2 8 होता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 आ जाएगा। अब दो को हम ब्रैकेट में कर देंगे क्लोज, y स्केयर प्लस 6y ये आ गया, देन प्लस 2y प्लस 12। ठीक है बच्चों, अब जी अब इसमें से कॉमन आ रहा y, ये y लिखेंगे हम, इसमें से हम जो है ना वो y बच गया प्लस 6 प्लस इसमें से 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा y और 2 6 दा 12 आ गया। ठीक है बच्चों, देन y प्लस 6
اور वाई प्लस 6 जो है ना ये 2 मरतबा है, इसको हम लिखेंगे 1 मरतबा, और ये वाई प्लस 2 जो है ना इसको हम जो है ना वो इकट्ठा करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा जवाब आया वाई की शक्ल के अंदर। हमारा जो सवाल था वो एक्स में था, ये हमें एक्स में दिया हुआ था, तो हम वाई लेट किया था 3x² प्लस 5x, ये हम वहाँ पर जो है ना वाई की जगह पर लिखेंगे 3x², उसके बाद था 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 6, और दूसरे के अंदर भी हम लिख देंगे 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 है बच्चों। पार्ट नंबर 5 के अंदर है, जिस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 किया था ना, उसके अंदर हमने दो दो पेयर्स को यानी दो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया था। किस तरह से मल्टीप्लाई किया था, अगर उनके हम जो है ना वो कांस्टेंट नंबर्स को यानी 1 2 लिखा हुआ है, इनको अगर हम ऐड करें तो आंसर सेम आए, दोनों पेयर को मल्टीप्लाई करें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यानी पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 के अंदर हमने थोड़ा सा तरीका जो है ना वो चेंज करना है, यानी इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करके जो है ना वो इनको देखना है कि सेम आ रहा है या नहीं। देखिए अब ये 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 जा 2 आएगा। ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास एक आ रहा है 2 आ रहा है, और एक हमारे पास आ रहा है 18, जो कि मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी वजह मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा क्यों जो है ना वो इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए, अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें 3 को 2 के साथ, 3 2 जा 6 आ जाएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 6 1 जा 6 आ जाएगा, मतलब सेम आ रहा है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इनको जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये कौन सी, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 के साथ, इस तरह से लिख देंगे हम, इसको जो है ना वो ब्रैकेट में क्लोज कर दें। नेक्स्ट x प्लस 2 और x प्लस 3, इसको जो है ना वो आप लोग अलग ब्रैकेट में क्लोज कर दें, और ये वाला -3x का स्क्वायर ये ऐसे ही चलता जाएगा साथ साथ। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले x को इसके साथ, बाद में इसके साथ, 1 को x के साथ, बाद में 1 को 6 के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। x मल्टीप्लाई विद x, x का स्क्वायर आ जाएगा, x मल्टीप्लाई विद 6, ये इसके साथ प्लस है, x के साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 होगा, यानी प्लस आ गया। 6 को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये 6x आ गया। अब प्लस 1 की बारी, प्लस 1 को प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x आ जाएगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, जमा 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 1 की बारी है, 1 1 जा 6 1 जा 6। ठीक है, इसको इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। देन हमारे पास दूसरी जो है ना वो पेयर है ब्रैकेट्स के, तो पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को x के साथ, और बाद में फिर जो है ना वो 3 के साथ। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट 2 वाला, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये 2x आ जाएगा। देन हमारे पास ये जमा 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 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये वाला -3x का स्क्वायर ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट x स्क्वायर, ये 6x और ये x दोनों सेम है, लिहाजा ये ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ प्लस का साइन है, प्लस 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 6x और 1x ये 7x हो जाएगा, प्लस 6। x स्क्वायर 3 और 2 ये दोनों सेम x है, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6 -3x का स्क्वायर। देखिए, हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के अंदर इसका जो है ना वो मल्टीप्लाई किया, तो उसमें ना पहली दो वैल्यूज ना हर ब्रैकेट में सेम आ रही थी, तो इसके अंदर क्या है, पहली और आखिरी सेम आ रही है। देखिए, x स्क्वायर प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 6, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे ले आएंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6, और ये वाला 7x जो है ना वो लास्ट पे शिफ्ट कर दें, x स्क्वायर प्लस 6 और 5x को जो है ना वो लास्ट पे शिफ्ट कर दें। क्लियर है बच्चों। देन ये -3x का स्क्वायर ये ऐसे साथ साथ चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखें, अब ये x स्क्वायर जमा 6, x स्क्वायर जमा 6 ये दोनों जो है ना वो सेम है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब आप जो है ना इनको लेट कर लें, लेट यानी कि फर्ज किया x स्क्वायर
जमा 6 इज इक्वल टू वाई। ठीक है बच्चों, अब इसकी जो है ना वो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी मसावात 1 से। मसावात 1 में जहां जहां पर लिखा हुआ ना एक्स स्क्वायर जमा 6, वहां पर आप लिखेंगे वाई। तो लिखते हैं यहां पर वाई प्लस 7x, देन वाई प्लस 5x, और ये वाला माइनस 3x का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये बच्चों हमारे पास ना ये लीनियर फैक्टर्स आ गए। अगर हम इनको इधर ही मल्टीप्लाई करके करते ना तो ये हमारे पास बननी थी 4 दर्जी मसावात, यानी x की 4 वाली मसावात आनी थी। तो अगर उसको हम जो है ना वो सॉल्व करते तो वो बहुत मुश्किल है, यानी कि इसको सॉल्व करना अभी हमारे जो है ना वो मतलब सॉल्व नहीं कर सकते, यानी अभी हमारे इसकी जो है ना वो समझ नहीं है। सॉल्व इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सीखा है 2 दर्जी मसावात को हल करना। तो इनको 2 दर्जी मसावात के अंदर हल करके फिर हम आगे जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो है ना इसका y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, y को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से तो ये आ जाएगा प्लस 5x प्लस 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 आ जाएगा। 7x को y से जमा जमा जमा, देन सॉरी इसके साथ y भी आएगा, जमा 7x और y, नेक्स्ट जमा 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 आ जाएगा बच्चों। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3x का स्क्वायर ये साथ साथ ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट y स्क्वायर, ये 5xy और ये 7xy, 5 और 7 जो है ये 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x और y आ गया। देन ये देखें ये हमारे पास दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं, जमा माइनस माइनस, अलामत जमा है क्या आएगी, बड़ी वैल्यू। 35 में से 3 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 32x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 2 दर्जी मसावात। इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे आया कि इसकी जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले x ये y और x वेरिएबल मिक्स में है तो ये y स्क्वायर पहले है, उसके बाद x y है, उसके बाद x है। ठीक है, यानी ये देन यानी ये हमारे पास c वाली वैल्यू है, ये वाली जो है। तो इसको हम ऐसे जना सॉल्व करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 32 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई विद प्लस 32 इज इक्वल टू प्लस 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 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 32 ही आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि ये दरमियान में जो लिखा हुआ है ना 12xy, इसके 2 टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जमा या माइनस करें तो 12xy आए, और अगर हम उनको जो ना वो ज़रब करें तो 32 आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 32 को ना फैक्टराइज कर लेंगे, 32 को फैक्टराइज कर लेंगे जी। इवन नंबर है, 2 1 2, 1 कैरी चला गया, 2 6 12, देन 2 8 16, देन ये आ जाएगा 2 4 8, देन ये 2 2 4, उसके बाद 2 1 2। ठीक है बच्चों, अब इधर से हम जाना बनाएंगे। देखिए अगर हम 2 2 4, 4 2 8, 8 को लें हम, यानी अगर हम लिखें 8 और 2 2 4, 8 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास 12 आता है, यानी 8 और 4 जने ये 12 आता है, जमा जमा जमा। ठीक है, डिटेल के साथ मैंने जने इसकी फैक्टराइजेशन 2 दर्जे मसावात की एक्सरसाइज 4.1 के अंदर डिटेल से बताई हुई है, यानी उसके अंदर मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया हुआ। अगर आप उसको देख लेंगे तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए 8 और 4 जने ये जमा का 12 हो जाएगा। अगर हम जमा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे जमा 4 के साथ, 8 4 32 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास दोनों जन जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं 32 भी मिल रहा है ज़रब करके, और जमा करके जो 12 भी मिल रहा है। तो ये 8 और 4 आया हमारे पास, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर जमा पहला 8 है, इसके साथ हम लिखेंगे एक्स वाई। पहले यहाँ पर एक्स होता था, यहाँ फिर वाई होता था, तो वही हम दरमियान में यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखेंगे, 8xy और 4xy जमा 32x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दो वैल्यूज को जो है ना वो ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर जमा 8xy, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, जमा लगाएंगे 4xy प्लस 32x का स्क्वायर। अब दोनों ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे,
اس میں سے کامن آ رہا ہے y، ٹھیک ہے، دونوں کے اندر y ہے اور کچھ بھی کامن نہیں آ رہا. یہاں پر y بچ جائے گا، ایک y رہ جائے گا اور یہ 8 رہ جائے گا، یہ y باہر چلا گیا، یہاں پر رہ جائے گا x. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر x اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، نہیں جی ایک تو x کامن آ گیا. دین دیکھیں 4 اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں 4 جو ہے نا وہ 8 مرتبہ اور اس میں 4 ایک مرتبہ ہے، تو 4 بھی کامن آ جائے گا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 4 بھی باہر، x بھی باہر، یہاں پہ رہ گیا y جمع یہ ہمارے پاس 8 4 32، جیسے 8 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے 32، x ایک باہر چلا گیا، ایک x رہ گیا. ٹھیک ہے بچوں. اب یہ y جمع 8x y جمع 8x سیم ہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے، اس کو لکھ دیں گے ایک دفعہ، 2 دفعہ یہ اس کو ایک دفعہ لکھ دیں. دین y پلس 4x اس کو ہم نے لکھ دیا اکٹھا کر کے. ٹھیک ہے بچوں. اب جو ہم نے جواب نکالنا نا وہ ہم نے نکالنا ہے x کی فارم کے اندر، سارے کا سارا جواب x کی شکل میں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر دیکھیں یہ y بھی اس کے ساتھ شامل ہے، تو جو ہم نے y لیٹ کیا تھا نا x اسکوئر جمع 6 یہ ہم لکھیں گے یہاں پر دونوں بریکٹس کے اندر. تو یہاں پہ دیکھیں اس کا آ جائے گا x اسکوئر جمع 6 اور جمع 8x. y کی ویلیو کو یہاں پر لکھ رہے ہیں ہم جو ہم نے اوپر لیٹ کی ہے، x اسکوئر جمع 6 اور جمع 4x. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ ہمارے پاس فائنل جو ہے نا وہ اس کا آنسر ہے. میں بھی شاید اس کا جو ہے نا وہ آنسر یہ 8x درمیان میں لکھا ہو اور ادھر 4x درمیان میں لکھا ہو، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، بالکل آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹ نمبر 6 کے اندر ہم جو ہے نا وہ اس کو ملٹیپلائی کریں گے جس طرح سے ہم نے پارٹ نمبر 5 کیا نا، اس کو بھی ہم سیم ویسے ہی کریں گے. یہ x پلس 1 کو ملٹیپلائی کریں گے x پلس 2 کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے پلس 1 کو ملٹیپلائی کریں پلس 2 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس پلس 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 آتا ہے، 2 1 جا 2 آ جائے گا. دین یہ والا اگر ہم ان کو جو ہے نا وہ -1 کو ملٹیپلائی کریں -2 کے ساتھ تو مائنس مائنس پلس 2 1 جا 2 آ جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. تو اس طرح سے ہم ان کو نا ملٹیپلائی کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس اس کو علیحدہ بریکٹ میں کلوز کریں گے، x پلس 1 یہ ملٹیپلائی ہوگا x پلس 2 کے ساتھ. اس کے بعد دوسرا جو ہے نا یہ x مائنس 1 یہ ملٹیپلائی ہوگا x مائنس 2 کے ساتھ. اس کی ریزن جو ہے نا وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. یہاں پر نا بچوں -16x اسکوئر، یہاں پر کچھ بکس کے اندر نا مسٹیک ہے، تو یہاں پر یہ کریکٹ آنا ہے 16x کا اسکوئر، یہ آپ لوگ صحیح کر کے لکھ لیں اس کے اندر. دین ہم ان کو نا ملٹیپلائی کریں گے، x کو x کے ساتھ x کا اسکوئر آ جائے گا. اس کے بعد x کو ملٹیپلائی کریں گے 2 سے تو یہ 2x آ جائے گا. دین 1 کو ملٹیپلائی کریں گے x کے ساتھ تو یہ x آ جائے گا، 1x آ جاتا ہے، جمع 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 آ جائے گا، 2 1 جا 2 آ جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. جب ہم دو بریکٹس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں نا تو پہلی بریکٹ دوسری بریکٹ کے تمام ارکان سے ملٹیپلائی ہوتی ہے، بعد میں دوسری جو ہے نا وہ ویلیو باقی دوسری بریکٹ کے دونوں ارکان سے یا 3 ارکان جتنے بھی ارکان ان سے ملٹیپلائی ہوتی ہے. اس کے اندر بھی ہم نے یہی کام کیا ہے. دین یہ والی ہے x ملٹیپلائی ود x کا اسکوئر آ جائے گا، x ملٹیپلائی ود دس تو یہ -2x آ جائے گا. دین اس کی باری یہ -x آ جائے گا، یہ مائنس مائنس پلس آ جائے گا، 2 1 جا 2 آ جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. اور یہ -16x کا اسکوئر یہ ایسے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ x کا اسکوئر یہ 2x اور یہ x پلس ہو رہے دونوں، پلس 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 3x اور 2x اور یہ 3x ہو جائے گا، پلس 2 آ جائے گا. نیکسٹ اس کی باری x اسکوئر -2x -x دونوں سیم ہے تو مائنس مائنس ہوتا ہے پلس 2x اور 1x یہ 3x ہو جائے گا، پلس 2 آ جائے گا، -16x کا اسکوئر ایسے ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. اب پارٹ نمبر 5 کے اندر بھی پہلی اور آخری ویلیو سیم آئی تھی تو ان کو ہم نے پہلے نمبر پہ لکھ لیا تھا، تو اس کے اندر بھی ہم ایسے کریں گے، x اسکوئر پلس 2 اسٹارٹ پہ لے آئیں گے اور 3x کو اینڈ پہ شفٹ کر دیں گے. x اسکوئر پلس 2 آ جائے گا اور یہ -3x آ جائے گا اور -x کا اسکوئر یہ ایسے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے بچوں. اس کو ہم نا ایکویشن نمبر 1 کا نام دیں گے. اب دیکھیں x اسکوئر پلس 2 یہ نا سیم ہے تو اس کو ہم کریں گے لیٹ x اسکوئر پلس 2 از اکول ٹو y. اب جہاں پر ایکویشن نمبر 1 میں x اسکوئر پلس 2 لکھا ہے نا وہاں پر آپ نے لکھنا ہے y، تو ہم لکھیں گے فرام ایکویشن 1 مساوات 1 سے، اردو میڈیم والے بچے تو یہاں پر لکھیں گے ہم y پلس 3x
देन y माइनस 3x और ये माइनस 16x का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई y को y के साथ y का स्क्वायर आ जाएगा, देन y को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 तो आएगी, 3 1 जा 3 और x y इकट्ठा करके लिख देंगे हम। ठीक है बच्चों, अब इसकी बारी है, जमा 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 3xy, 3x को मल्टीप्लाई करें y के साथ, देन ये वाला जमा माइनस माइनस आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 आ जाएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर आ जाएगा, और ये लास्ट वाला माइनस 16x का स्क्वायर ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर ये माइनस 3xy है और ये जमा 3xy है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम काट देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट y स्क्वायर माइनस 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 होता है प्लस, तो अलामत आती है माइनस की बड़ी वैल्यू की, 16 और 9 जो है ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ना हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और दूसरा बन रहा है a माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर बनाएंगे, फॉर्मूला y है तो y का होल स्क्वायर आ जाएगा, 25 को लिख सकते हैं 5x इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 5x इसका होल स्क्वायर लिख दिया हमने। अब इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे, यह आ जाएगा y ब्रैकेट पावर खत्म कर देंगे, y प्लस 5x हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा y माइनस 5x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू जो हमने ऊपर लेट की थी y की वैल्यू को लिखेंगे। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जमा 5x, देन ये वाला y एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 5x। ठीक है बच्चों, ये आंसर भी इसका ठीक है, लेकिन अगर बुक में जो ना वो इस तरीके से लिखा हो, x वाली वैल्यू सेंटर में लिखी हो, जमा 5x और ये जमा 2 आ जाएगा लास्ट पे, उसके बाद ये x दरमियान में ले आएंगे माइनस 5x और जमा 2 लास्ट पे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास लास्ट फाइनल जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 6 है। तो हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट जो है ना वो सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को 9th क्लास के लेक्चर्स मिलते रहें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।